الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین وفی آدن اور وفی حدیثی آدن آد کے واقعے میں وفی امری آدن اور آد کے معاملے میں یہ جار ہے اور یہ مجرور، تو یہ یعنی کہ قائم مقام خبر مقدم بن رہی ہے، تو یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آیتن جو ہے وہ حذف ہے، وفی آدن آیتن، تو آد کے معاملے میں قوم عاد کے معاملے میں نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اذ ارسلنا اب دیکھیں ارسلہ یرسلو یہ فعل ماضی ہے، را سین لام باب افعال سے ہے، ارسلہ یرسلو ماضی سے پہلے اگر اذ آئے تو اس کا مطلب ہے ماضی میں بات ہوئی ہے۔ اذ ارسلنا نون جو ہے نحن فاعلہ یعنی ہم نے، اذ ارسلنا جب ہم نے بھیجا علیہم ان پر بھیجی، کیا بھیجی یہ دیکھیں، ریح العقیم یہ موصوف ہے، ریح کہتے ہیں ہوا کو، عقیم کا مطلب ہے یہ صفت ہے، ہم نے ایسی ہوا بھیجی جس کی صفت یہ تھی کہ وہ بانجھ تھی، وہ ہوا بانجھ تھی۔ بانجھ کا معنی علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں کسی قسم کا خیر و برکت نہیں تھا۔ اب یہ جو موصوف صفت ہے دیکھیں یہ بھی الف لام ہے، یہ بھی الف لام میم سے، تو وفی عادن تو عاد کے قصے میں نشانی ہے، اذ ارسلنا جب ہم نے بھیجی ان پر، کیا بھیجی ہے، ریح العقیم، ہم نے بانجھ ہوا بھیجی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم جو ہے وہ تم پر بھی ایسی ہوا بھیجیں۔ اور قوم عاد، قوم سمود اور جو قوم لوط ہے اس کے بارے میں عربوں کو خوب جانتے تھے، یعنی کہ خوب علم تھا عربوں کو، اور ان کی شاعری میں جو ہے وہ قوم عاد کا ذکر ہوتا تھا، قوم سمود کا ذکر ہوتا تھا، یعنی کہ وہ سے بڑی اچھی طریقے سے آگاہ تھے۔ اور زمین سے نشانی کے جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ زمین میں نشانیاں ہیں، اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک جو ہے وہ اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ جس طرح قریش مکہ جب سفر کرتے تھے تو سفر کے دوران جب یہ ویران بستیاں دیکھتے تھے، جن پر عذاب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا ہے، تو یہ ان کو یاد دلاتا تھا کہ دیکھو یہ کوئی دور قصہ نہیں ہے، اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہی جو ہے اسی طریقے پر تم چل رہے ہو، تو تم ڈرو۔ اب جو ما تذر من شیء، اب یہ مزید جو ہے یہ اس بانجھ ہوا یعنی جس میں کسی قسم کی خیر و برکت نہیں تھی اس ہوا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ماں کون سا، یہ ماں نافیہ ہے، نہیں، تذرو کا مطلب تھا چھوڑنا، ما تذرو من شیء وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتی تھی، اتت علیہ جس پر وہ آتی تھی، عطا یاتی کا معنی آنا، اتت یہاں پہ کس لیے، اتت یہ مونس ہے، یہ کس کی طرف جا رہا ہے، ہوا چونکہ مونس ہے عربی زبان میں، تو ما تذرو وہ نہیں چھوڑتی تھی، من شیء کسی چیز کو، یعنی کہ جب وہ ہوا آتی تھی، اتت علیہ جو اس کے رستے میں آتی تھی، جو اس کو یعنی وہ جہاں سے گزرتی تھی اور جو چیز اس کی زد میں آتی تھی، ٹھیک ہے، الا مگر جعلتہ وہ اس کو بنا دیتی تھی، جعل جیم آئین لام کا معنی بنا دینا، وہ اس کو بنا دیتی تھی کررمیم۔ اب چاہیے کررمیم کیا ہے، یہ جو کاف ہے یہ ایسے کہ دیکھیں یہ کاف ہے اور رمیم اور رمیم کے نیچے جو زیر آئی ہے وہ اس حرف تشبیہ کی وجہ سے آئی ہے، اس لیے کہ یہ حرف جار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مجرور کر دیتا ہے اپنے بعد آنے والی اسم کو، تو کر رمیم جیسے جو ہے وہ بوسیدہ ہڈی، رمیم کہتی ہیں
कंकड़ को भी कहते हैं, बोसीदा हड्डी को भी कहते हैं। बोसीदा हड्डी यानी कि वो हवा जब चलती थी तो वो जो चीज उसकी जद में आती थी अल्लाह के हुक्म से, इल्ला जालतु कररमीन, तो वो उसको ऐसे बना देती थी जैसे बोसीदा हड्डी। वफी अमरे समूद, वफी हदीसी समूद, समूद के मामले में अब देखें समूद जो है कौम समूद, वफी समूद आयतुन, उसमें भी जो है वो निशानी है, ठीक है। उसी तरीके से ये जार है, ये मजरूर है, तो ये कायम मुकाम खबर मुकद्दम बन के पहले आ गया, और ये मुब्तदा मुअख्खर महजूफ, ये कायम मुकाम खबर बन रहा है। तो वफी समूद, तो समूद के मामले में आयतुन, अब देखें ये समूद जो है ये गैर मुंसरिफ अस्मा है, ठीक है। तो वफी समूद आयत, वफी समूद आयतुन, तो कौम समूद के वाक़े में निशानी है इस काला, इस कीला, देखना काफ वाव लाम मादा है, ये तालीदात में से अजवफ कैटेगरी का है, और अजवफ कैटेगरी में जो वाव या होता है उसका जो फेल मजहूल बनता है वो फीला वजन पे बनता है, तो ये कीला। तो इस कीला लहुम, जब उनसे कहा गया तमत्तउ हत्ता हिन, जब उनसे कहा गया, यानी कि इसमें काफी हिस्सा हज़फ है। इसकी लहुम जब उनसे कहा गया तमत्तउ हत्ता हिन, तमत्तउ का मतलब होता है मजे करो, हत्ता हिन यहाँ तक के, हिन एक खास वक्त तक, हिन कहती हैं टाइम को, बेसिकली एक खास वक्त को, यानी कि अजाब तक के वक्त को, यानी कि उनसे पहले कहा गया था, यानी कि इसमें हज़फ है। देखिए इस सूरत में जो कौमों के जो वाक़यात आए हैं वो बहुत इख्तसारन आए हैं, तो काफ़ी हिस्सा हज़फ कर देगा। यानी जब उनसे कहा गया था कि ये अल्लाह ताला की ऊँटनी है नाक़तुल्लाही, इसको मत जो है वो इसको मत नुकसान पहुँचाना, नहीं तो तुम पर अल्लाह ताला का अजाब आ पकड़ेगा, ठीक है। जब उन्होंने उसकी पूंछें काट दी थी तो फिर तमत्तउ, फिर ये कहा गया था कि अच्छा तो चलो बस तुम्हारे पास ये मोहलत है, उसके बाद जितना यश करनी है यशी कर लो, जितने मजे उड़ाने मजे उड़ा लो, हत्ता हिन एक खास वक्त तक, तो बस उसके बाद फिर तुम पे वो अजाब आ पकड़ेगा। अब देखें फा तो उन्होंने, ये फा जो है ये अतफ का काम कर रहा है, फा तो उन्होंने नाफरमानी की अन अमरे रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म की, अन अमरे रब्बी अपने रब के हुक्म की, फ़अख़ज़तहुम, अब ये जवाब है उसका, ये फा जवाब है, उन्होंने क्या किया, अख़ज़तहुम, तो अख़ज़ा याख़ुज़ु, हमज़ा खा और जा मादा है, अख़ज़ याख़ुज़ु बाब नसरा से आता है, अख़ज़ याख़ुज़ु, फ़अख़ज़तहुम, हुम क्या है, ज़मीर मफ़ऊली है, यानी कि उनको पकड़ लिया, किसने पकड़ लिया, साइकतु, साइकतु ये क्या है जी, साइकतु ये कड़क ने, ये बिजली ने पकड़ लिया। यानी कि देखिए उलमा कराम फरमाते हैं कि जब जहाँ पे जल्जला कहा गया कि उनको जल्जले ने आ पकड़ा, उनको बिजली ने आ पकड़ा, तो इसका माना ये भी हो सकता है कि उनको एक बहुत बड़ी मुसीबत ने जो है वो आ पकड़ा हो, यानी कि वो हिल गए, जैसे कि जल्जला आया तो वो हिल गए, यानी ऐसी मुसीबत ऐसी आफत उन पर आई अस्तगफिरुल्लाह कि वो हिल गए। यानी कि अल्लाह ताला कुरैश को बता रहे हैं तवील खास कि देखिए, और हर कार्य कुरान को बता रहे हैं कि देखो जो रविश तुम अगर इख्तियार करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ऐसा अजाब आ पकड़े। वहुम यंजुरून, अब देखिए ये जो है ये बहुत खतरनाक है। वहुम ये वाव मुफस्सरा भी इसको कह सकते हैं। बाज़ उलमा कराम ने कहा कि ये वाव मुफस्सरा, और बाद ने कहा कि वाव हालिया, हाल उनका ये था वहुम यंजुरून, वो देख रहे थे, नज़र यंजुरू वो देख रहे थे। उलमा कराम फरमाते हैं कि ये जो आयत का हिस्सा है ना वहुम यंजुरून, ये बहुत खतरनाक है। देखिए अगर एक शख्स है जो कि सोया हुआ है और एक घर में है, और अगर घर की दीवारें जो है वो गिर गई, घर गिर गया तो वो मर गया, उसको क्या पता। लेकिन अगर एक शख्स जो है वो जाग रहा है और उसको पता कि घर गिरने वाला है, ठीक है, और वो अपनी मदद आप भी नहीं कर सकता, अपने आप को बचा भी नहीं सकता, तो उसके हॉरर का, उसके टेरर का क्या ग्राफ होगा आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने कहा है कि वो देख रहे थे, वो यानी कि वो बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे, वो देख रहे थे, और हमने क्या किया, उन पर बिजली गिर गई। तो एक माना ये, दूसरा माना ये, बिजली से मुराद, ज़ल्ज़ले से मुराद ये होता है कि उनको एक ऐसी मुसीबत ने आ पकड़ा, उनको एक ऐसे खौफ ने आ पकड़ा, उनको एक ऐसी हलचल ने, अफरा तफरी ने आ पकड़ा कि जिसने उनकी जिंदगी में ज़ल्ज़ला कायम कर दिया, उनको एक किस्म की कड़क आवाज ने आ पकड़ा। तो फा अतफ का मा नहीं, ये नाफिया
अस्तता यस्ततीउ, इस्तात रखना, कुदरत रखना, कुदरत रखना, ताकत रखना, उनमें ताकत नहीं थी, कुदरत नहीं थी, मिन कियामिन, किसी किसी तरीके से क्याम किया। अब देखिए ये मिन जो है ना, ये मिन क्या काम कर रहा है, ये उसको नकरा बनाने के लिए कि मिन कियामिन यानी किसी तरीके से वो उसका कोई मुकाबला कर सकते, उसका सद्देबाब कर सकते, उसके मुकाबले में कुछ कर सकते। किसी किस्म का वो कुछ नहीं कर सके जब उन पर अजाब आया और वो देख रहे थे। देखिए बात आ गई कि वहुम यंजुरून, वो देख रहे थे, यानी कि वो देख रहे थे और वो उन पे किसी किस्म की कुदरत ही नहीं थी। शल कर दिया था, जैसे कि मफलूज नहीं कहते, यानी कि उनमें कोई उनकी सोच भी नहीं थी कि हम कोई मतलब कुछ कर सकें। यानी कि जब अल्लाह का अजाब आया तो सारी तदबीरें खत्म हो गई उनकी। फमस्तताऊ मिन क़ियामिन, क़ियाम यहाँ पे जो क़ियाम है उलमा कराम फरमाते हैं इससे मुराद यह है कि अपना बचाव कर सकते, अपना बचाव कर सकते, यानी कोई इख्तियारी तदबीर ले लेते। वमा कानू, और ना वो थे, मुंतशिरीन। अब देखिए ये है नून साद और रा मादा है, ये आया है बाब इफ्ताल से, ये आया है बाब इफ्ताल से। बाब इफ्ताल से अब नसरा इन तसरा यन तसरू का मतलब होता है, जैसे कि देखें कासबा, कासबा का मतलब होता है उसने कमाया, तो ये इक्तसबा का मतलब हो गया है उसने अपने लिए कमाया। ठीक है, काला का मतलब होता है उसने नापा। जब ये बाब इफ्ताल से इकताला तो उसका मतलब होगा उसने अपने लिए जो है वो नापा। आखदा का मतलब होता है पकड़ना, इत्तखदा उसने अपने लिए पकड़ा। तो देखिए यहाँ पे इन तसरा, ये बाबे चूंकि बाबे इफ्ताल से, तो उसका मतलब है अपने लिए मदद करना, यानी वो अपनी मदद नहीं कर सके। अपनी मदद वमा कानू मुंतसिरीन, वो अपनी मदद कर सकने वाले थे ही नहीं। ज्यादातर जो उलमा कराम गए हैं वो बदला लेने के, वो ना तो उनमें, इसका तर्जुमा ये किया जाता है फमस्तता उमिन कियामिन, ना तो वो उनके उनमें खड़ा होने की ताकत थी और ना ही वो इंतकाम ले सके, ना ही वो, इसका एक माना इंतकाम लेना, वही माना जाता है ना। देखें क्याम है तो इंतकाम है, अपने लिए खड़ा होना, इंतकाम लेना, बदला लेना। तो देखिए वकौमा नोहिन, अच्छा अब यहाँ पे देखें ना, ये कौमा ये हालत नसब में आ रहा है वकौमा, तो उलमा कराम फरमाते हैं कि इससे पहले मफूल फ़िल महजूफ है, यानी कि इससे पहले उज़कुरू यानी कि याद करो, व उज़कुरू और याद करो, कौमा नूहिन नूह की कौम को, मिन कब्ल इससे पहले नूह की कौम को याद करो, इन्नहुम बेशक वो, कानू वो थे, कौमन फासिकीन वो ऐसी कौम थे, ये मौसूफ है, वो ऐसी कौम थे, फासिकीन फासीन कौफ नाफरमान लोग थे। वो उज़कुरू कौमा नूहिन कौम नूह को याद कर लो, मिन कब्ल इससे पहले, इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन वो नाफरमान लोग थे। फासिकीन ये इस्मुल फाइल है, इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन ये हालत नसब में है फासिकीन, तो वो नाफरमान थे। आप देखें कि सूरह काफ में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र पहले आया, सूरह ज़ारियात में नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आखिर में आया। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमुसीऊन, वस्समाअ, आप देखें आसमान जो है, वस्समाअ ये क्या है, ये हालत नसब में है, वस्समाअ और आसमान को बनैनाहा। आप देखिए ये मफूल कह लें, ये मफूल अगर आ जाए, ये बनैना ये फेल है और ये ज़मीर मफूली है। ठीक है, ज़मीर मफूली। उलमा कराम फरमाते हैं अगर ये क्वेश्चन बने कि अगर मफूल पहले आ जाए तो उसके बाद फेल आए और फेल के साथ जो है वो ज़मीर मफूली आ जाए, तो वही फेल जो ज़मीर मफूली के साथ होता है वही फेल हम ले आते हैं इस मफूल से पहले। बनैना, बनैना समा, तो ये क्या बन गया, बनैना समा फेल, बनैना हमने आसमान, बनैना समा बनैना हा हमने आसमान को बनाया, उसको और उसका बनाया, यानी कि मफूल मुतलक में फिर उसको ले लेते हैं। बनैना समा बनैना यानी कि हमने आसमान को बनाया, इसको कहते हैं फेल इश्तिगाल। इश्तिगाल हुआ ना फेल का। अच्छा वो बैना बस समा बनैनाहा और हमने आसमान को बनाया, बिआईदिन आदा या ईदू, इसके दो माना है, इसके दो माना है देखें, आदा या ईदू
एक तो माना अपने हाथों से, मैंने अपने हाथों से बनाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दो चीजों का जिक्र किया कि मैंने दो चीजों को अपने हाथों से बनाया। एक तो आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि सूरह ज़ारियात में कि अल्लाह ताला ने आसमान को अपने हाथों से बनाया, और एक अल्लाह ताला ने सूरह साद में कहा कि या इब्लिसु मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदी, है इब्लिस क्या हुआ है तुझे कि तू उसको सजदा नहीं कर रहा कि जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। ठीक है, एक तो माना ये कि अल्लाह ताला ने अपने बिअयदीन अपने हाथों से बनाया। ठीक है, और दूसरा माना जो है वो है कुदरत से बनाया, ताकत से बनाया, अपनी तदबीर से बनाया। वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब। तो हमने आसमान को बनाया कुदरत से। अब देखिए ये जो आयत है व इन्ना, अब ये वाव मुफस्सिरा है। ठीक है, ये वाव मुफस्सिरा है, ये वाव तफसीरी है, ये मजीद उसको एक्सप्लेन कर रहा है। व इन्ना, और हम मूसिऊन, देखे ना, औसा यूसिऊ, मूसिऊन, ये मुकरिमून के वजन पे, मुकरी, मुकरिमुन वाहिद है, और मुकरी मूना क्या है, ये जमा का सीगा, जमा वाहिद। मूसिऊन, हम फैलाने वाले ही हैं, हम इस कायनात को फैला रहे हैं। लमूसिऊन, अब देखिए इन्ना में भी ताकीद है, और ये जो लाम है ये भी लाम मुजाहले का है, यानी ये भी लाम ताकीद है। ये जो आयत है ना व इन्ना लमूसिऊन, बस कॉस्मिक यूनिवर्स से इसका ताल्लुक है, इसका ताल्लुक एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स है। अगर आप गैर मुस्लिमों के इंटरव्यूज पढ़ें जो मुसलमान हुए हैं, जो तहकीक करके मुसलमान हुए हैं, उनके इंटरव्यूज में आपको जो काफी सारी बातें जो मिलेंगी, उनमें से वो एक बात आपको कॉमन मिलेगी, ज्यादातर ये मिलेगी कि उन्होंने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले कहा कि आसमान को हम फैला रहे हैं। ये तो 20वीं सदी में जाके 1920 में जाके पता चला जब टेलीस्कोप्स बनी। ये तो 20वीं सदी में जो है वो टेलीस्कोप्स बनी, 20वीं सदी में सैटेलाइट्स आए। तो 1450 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ये दावा कर दिया कि वह इन्ना लमूसिऊन, हम इस कायनात को फैला रहे हैं। आज हमारी जो कायनात है वो मुसलसल फैल रही है, जैसे कि कायनात मुसलसल फैल रही है। ठीक है, और इस कायनात की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो आप देखें कि जरा सा अगर कम या ज्यादा हो जाए तो सारा बैलेंस आउट हो जाता है। हमारे निज़ाम फल्कियात में मुश्तरी है सियारा। ठीक है, आप ये देखें कि जो मुश्तरी सियारा है वो इतने खतरनाक जो शहाब साकिब आते हैं जिन्होंने जमीन से टकराना होता है, मुश्तरी उनको अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, और कितने सियारे होते हैं जो जमीन से टकराने लगते हैं, लेकिन मुश्तरी जो है वो दिफा का काम करता है जमीन के लिए। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि जो जमीन जिस मदार में घूमती है, अगर वो मदार साइंटिस्ट कहते हैं कि 5% सूरज के करीब हो या 5% सूरज से दूर हो, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। अगर 5% भी जो है वो जमीन का जो मदार है वो सूरज के मदार के करीब हो, तो हमारा जो पानी है वो बुखारात बन जाए, और अगर 5% भी दूर हो जाए तो पानी जो है वो फ्रीज हो जाए। इसी तरीके से आप देखें कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, आपने पढ़ा होगा कि अगर ये कांस्टेंट ना हो, आप ये देखें कि अगर बढ़ जाए, अगर ये बढ़ जाए तो कायनात फैल ना सके, ये गैलेक्सीज, ये स्टार्स। और अगर ये कम हो, ये जो देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अगर ये 1% भी बढ़ जाए तो हम हरकत नहीं कर सकते, हम हरकत नहीं कर सकते, हम एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकते। और अगर ये 1% भी कम हो जाए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हम तो उड़ने लग जाए। ये तो स्टेबिलिटी ना हो, फिर तो कायनात ऐसे हो जैसे बिखरे हुए ज़रात हैं। इसी तरीके से आप देख लें, ये जो आप इक्वेशन पढ़ते हैं E इक्वल टू MC स्क्वायर, E इक्वल टू MC स्क्वायर, देखिए इसमें क्या है कि एनर्जी और मैटर जो है वो एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट हो, स्पीड ऑफ लाइट क्या है वो कांस्टेंट हो, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो फिर मैटर और एनर्जी एक दूसरे में जो है वो इंटरचेंजेबल है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के कांस्टेंट होने की वजह से हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होती है, और फिर उससे जो है वो कार्बन मिलती है, उससे जो है वो ऑक्सीजन हमें मिलती है। और अगर ये स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट ना होती तो हमें जिनकी जरूरत थी एलिमेंट्स की, कार्बन की, ऑक्सीजन की, तो ये हमें ना मिल पाते। इसी तरीके से आप देखें कि जो लोहा है, ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं जिनकी वजह से हमें ये चीजें मिलती हैं। तो आप ये पूरा एक निज़ाम है। आप कभी स्पेस फिजिक्स आप पढ़ें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लें,
تو حیران ہو جاتے ہیں انسان کہ اس میں ذرا جو سپیڈ ہے، آپ دیکھیں کہ اگر اس میں اس کی جو کوسمولوجیکل کانسٹنٹ ہے، اگر آپ اس پہ اسٹڈی کریں، اگر یہ 1% بھی بڑھ جائے تو کائنات کا جو نظام ہے، تو اگر یہ 1% بھی بڑھ جائے تو ہماری کائنات سکڑنے لگ جائے، کائنات سکڑنے لگ جاتی. اور اگر یہ 1% بھی کم ہو جاتا تو ہماری کائنات ایسے پھیل جاتی جیسے کہ ریت کے ذرات ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک گھر جو ہے وہ ایک دن اس کو کوئی صاف نہ کرے تو وہ صاف نہیں رہ سکتا. ایک سکول ہے، ایک دفتر ہے، ایک دن جو ہے وہ اس کی صفائی نہ ہو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو یہ تو کائنات ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. تو یہ تو منصوبہ بندی ہے عزیز العلیم کی، غالب کی، علم والے کی. دیکھیں یہ بھی اسی طریقے سے والارض، یہ بھی اسی طریقے سے والارض یہ مفعول ہے، فرشناہا یہ بھی یہ فعل ہے اور یہ ضمیر مفعولی ہے. تو اگر فعل کے بعد ضمیر مفعولی آئے تو اسی فعل کو جو ہے وہ جو یہ مفعول ہوتا ہے اس سے پہلے لے آتے ہیں. وفرشنا الارض فرشناہا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، ہم نے اس کو پھیلایا. والارض فرشناہا فنعم النعمہ. نعمہ کہتے ہیں یہ افعال مدح سے ہے، مدح تعریف کے. فنعمل تو کتنے ہیں ہم اچھے، ماہدون یہ ماہدون یہ دیکھیں فاعلون جو تھا یہ واحد تھا اور فاعلون جمع اسم الفاعل. فنعم الماہدون تھا، مہد گود کو بھی کہتے ہیں نا. تو ہم یعنی کہ گود یعنی کہ ہر طرح کا سامان ہم نے، تو ہم کتنے اچھے ہیں. یعنی کہ جو ماہدون ہے نا، اس میں یہ ہے، اس میں چونکہ ماں کی گود کو بھی کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ تمہاری ضروریات کی چیزیں، جو بھی ضروریات کی جو اشیاء ہیں، جو ضروری اشیاء ہیں، جو تمہاری ضروریات کی جو اشیاء ہیں وہ ہم نے تمہیں اس زمین میں دی. آپ دیکھیں کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا وہ جو لوگ کافر ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان اور زمین یہ ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کیا. بعض علماء کرام نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ زمین بند تھی اور آسمان بند تھا، پھر آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین نے جو ہے وہ اس پانی کو پھر اس کو آپریٹ کیا اور پھر فصلیں اگیں اور پھر سبزیاں، پھل اور پھر سروائیول. والارض فرشناہا فنعم الماہدون. اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم کتنے اچھے ہیں تو زمین کو پھیلانے والے، بندوبست کرنے والے اس زمین میں تمہاری سروائیول کا، تمہاری لائف کا، تمہاری زندگی کا. اب دیکھیے ومن کل شیء خلقنا زوجین. بعض علماء کرام کے فرماتے ہیں کہ یہ ومن کل شیء ہے، یہ تقدیم و تاخیر ہے، یہ مقدم ہے اور یہ مؤخر ہے. ٹھیک ہے، خلقنا زوجین ہم نے پیدا کیا، زوجین جوڑے، ومن کل شیء ہر چیز میں سے لعلکم تاکہ تم تذکرون تزکیہ کرو، تم اپنا تزکیہ کرو، پاکیزگی اختیار کرو. دیکھیں جب جوڑا کی شکل میں کہا نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتفاق نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ ہم نے جوڑے بنائے تو اس کا مطلب ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ وہ اتفاق چیز نہیں ہو سکتی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے اور انسانوں کے چہرے مختلف بنائے. اچھا مردوں کے چہرے علیحدہ بنائے، عورتوں کے چہرے علیحدہ بنائے، یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جب جوڑے بنائیں تو جوڑے بنانے میں بھی اتفاق نہیں ہو سکتا، یعنی کہ سب اتفاق ہے. اچھا ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. اب آپ غور کیا آپ نے سورہ زاریات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائیں، ٹھیک ہے، آسمان کی نشانیاں بتائیں اور اس میں زمین کی نشانیاں کا بھی ذکر ہے. آپ دیکھیں شروع میں بھی بارش کا ذکر کیا کہ بارش جو ہے وہ موت کی یاد دلاتی ہے. یعنی کہ تمہیں بارش ہے، جس سے ہم بارش کو زندہ کرتے ہیں، پانی کو ہم دوبارہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ریسٹور کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم تمہیں بھی زندہ کریں گے. ٹھیک ہے وہ، اور آخر میں کیا پھر دوبارہ آسمان اور زمین کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، آسمان اور زمین کا ذکر کیا، پھر کہا کہ جوڑے بنائے. اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے قوموں پر برسایا. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کا بھی ذکر کیا، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کا ذکر کیا جو ابراہیم علیہ السلام کو دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشخبری کا ذکر کرنے کے بعد عذاب کا ذکر کیا قوم لوط پہ. پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر کیا.
फिर फिरौन पर कौम के अजाब का जिक्र किया, फिर कौम आद, फिर कौम समूद और फिर कौम नूह। दरमियान में उन कौमों का जिक्र किया जिन पे अजाब आया। और ऊपर और नीचे क्या कहा? आसमान और जमीन का जिक्र किया, अपनी जो है वो नेमतों का जिक्र किया। आखिर में क्या किया? आसमान और जमीन का जिक्र किया। और फिर क्या किया? ज़ौजैन ने। एक पहलू तो ये हो गया कि जब चीज जोड़े में होती है तो इत्तेफाक नहीं होता, और दूसरा जब अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने जोड़े बनाए हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात होती है। समझें, जिस तरह इस रात और दिन का जोड़ा, जिस तरह जिस तरह नेकी और बुदी का जोड़ा, उसी तरीके से जिस तरह ये दिन है, जिस तरह ये जिंदगी है, उसी के मुकाबले में दूसरी जिंदगी का जोड़ा। क्या बात समझ आ रही है आपको? यानी कि अल्लाह ताला ने शुरू में बात की थी आसमान और जमीन की, कैसे जमीन जो है वो, सूरज जो है वो पानी को सक करता है, बादल बनते हैं, और फिर कौमों पर अजाब का जिक्र किया। फिर अल्लाह ताला ने आसमान का जिक्र किया, हमने आसमान को बनाया और हमने फैलाया। अच्छा, क्या ये बेमकसद हो रहा है? कोई मकसद होता है ना। अच्छा, फिर हमने जमीन जमीन में तुम्हारी चीजों का इहतमाम किया, तो क्या ये बेमकसद हो रहा है सब? है अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि हमने जोड़े बनाए हैं हर चीज में से, वमिन कुल्ली शैइन। हमने हर चीज, यानी कि ये भी तुम्हें क्यामत की याद दिलाती है। जिस तरह ये दिन है बहुत बड़ा दिन है, उसी तरीके से यानी कि ये जो तुम्हारा दिन है इसका ताल्लुक है तुम्हारे अमल से, और इसका जो जोड़ा दूसरा दिन है उसका ताल्लुक है तुम्हारे हिसाब से। आज तुम फसल बोते हो और उसका जोड़ा होता है उस दिन से जिस दिन तुम फसल काटते हो। तो ये जो जब जोड़ा आता है तो उसके दो माना होते हैं। एक तो पहलू ये होता है कि वो चीज इत्तेफाक नहीं है। जोड़ा, अगर एक चीज का जोड़ा है तो वो इत्तेफाक नहीं हो सकती, ठीक है। वो कंप्लीमेंट्री, वो मिलके एक मकसद की जो है जोड़ा जो है एक दूसरे के साथ मिलकर ही जो है वो अपने मकसद की तकमील करते हैं। और इसी तरीके से ये जो जिंदगी है ये जब क़यामत के दिन के साथ मिलेगी तब ही अल्लाह ताला जो है वो खैर और शर के दरमियान फैसला फरमाएगा। तो मिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। ये सारी बातें करने के बाद अल्लाह ताला ने कहा लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो, अपना तज़किया करो, अपनी सोच में, अपने अमल में पाकीज़गी लाओ और अपने आप को पाक करो, और वो जन्नत जो अल्लाह ताला ने पाकीज़ा लोगों के लिए बनाई है उसमें दाखिल हो जाओ। और फिर क्या कहा? फफिर्रू इलल्लाह। अब जब तुम गौर फिक्र करोगे, जब तुम तज़किया करोगे तो तुम इस नतीजे पर पहुंच जाओगे, फफिर्रू इलल्लाह, तो बस भागो अल्लाह ताला की तरफ ना। ये जो फा है, ये जो पहला वाला फा, ये तो अतफ का है, फफिर्रू, तो बस भागो, यानी ये नतीजा दे रहा है कि बस भागो। फिर्रू, फर या फिर्रू का मतलब होता है भागना, ठीक है। फा और रा मादा, फा रा और रा मादा है, फफिर्रू ये फेल है और अंतुम इसका फाइल है। तुम भागो, इलल्लाह ये जार और ये मजरूर, मुरकब जारी मुतल्लिक़ फेल होके, यानी कि ये सारी बात जब समझ आ गई है तो इसका मतलब यह है कि फ़फ़िरू इलल्लाह, अपने अल्लाह ताला की तरफ भागो। अब ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कहा जा रहा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इन्नी लाकुम, मैं तुम्हारे लिए, मिनहू उस अल्लाह ताला की तरफ से, होगी ज़मीन अल्लाह ताला की तरफ से, नज़ीर मुबीन, मैं डराने वाला हूँ वाज़िया, मैं इंज़ार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ कि डरो उस दिन से। आप देखें पिछली आयत में क्या था कि जोड़ा, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के जोड़े बनाए, ठीक है। और अगली आयत में क्या था? अल्लाह ताला की तरफ भागो, वो मैं तुम्हारे लिए उसके दर्द में डर सुनाने वाला हूं। किसका डर सुनाने वाला हूं? उस जोड़े के दिन का, वो उस उस दिन का जो इस दिन के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारे अमाल, जन्नत और दोजख का जोड़ा, ये तुम्हारे अमाल डिसाइड करेंगे, तो डरो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।